Good morning, students. Welcome again here in this video tutorial. This is your maths tutorial class. Before going to start our topic, I would like to share something about COVID-19. In this challenging time of COVID-19, we have to ensure that the virus does not spread. So, for that, we need to follow the COVID-19 appropriate behavior. Wear mask, follow physical distance, maintain hand hygiene. So, you should wear mask properly, stay at least 6 feet from others, wash your hands frequently with soap and water at least 20 seconds. Remember, do not touch your face, do not share your food or drink with others. Understood everyone? So what you have to do? You should wear mask properly whenever you go to outside and you are in the group. ओके जब भी आप ग्रुप्स में होते हो, जब भी आप लोगों की भीड़ में होते हो एंड घर से बाहर निकलते हो, यू शुड वेयर मास्क प्रॉपरली and wash your hands frequently with soap and water. Whenever you come back to anywhere, any place or market, you should wash your hands frequently, at least 20 seconds, with soap and water. सोप और वाटर से आपको अच्छे से अपने हाथों को धोना है 20 सेकेंड्स तक. फाइन. रिमेंबर, डू नॉट टच योर फेस. आपको अपने फेस को टच नहीं करना है. डू नॉट शेयर योर फूड ड्रिंक विथ अदर्स. किसी दूसरे के साथ आपको अपना फूड और ड्रिंक शेयर नहीं करना है. जस्ट फॉलो द COVID-19 appropriate behavior and stay safe. Okay? Well, students, now come to our topic. So, in the last tutorial class, we have learned about addition of like fractions. Now, today, we'll learn subtraction of like fractions. Fine. So, here we have an example. Just look at this example. First of all, take out your maths book. This is page number 109. So, let's see the example. Madhvi had 4/5 of a cake. She gave 1/5 of it to Ashu. How much cake is left with her? Clearly, this is a problem of subtraction. So, cake left with her is equal to 4 out of 5 minus 1 out of 5. Now, you think that how it is a problem of subtraction? Because here Madhvi had 4/5 of a cake. Madhvi के पास एक केक का 4 आउट ऑफ 5th पार्ट था. फाइन. मीन्स केक के 5 पीसेस किए हैं. ओके, उसमें से 4 माधवी को मिल गया. शी गेव 1/5 ऑफ 8 टू आशु. उसमें से उसने 1/5 किसको दे दिया? आशु को दे दिया. मीन्स 4/5 उसके पास था. 4/5 में से 1/5 उसने दे दिया. दैट्स वाई दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ subtraction. This can be cake left with her 4 out of 5 minus 1 out of 5. This can be illustrated by a diagram as shown. Okay. So here you can see total parts of cake like 1, 2, 3, 4 and 5. Total parts कितने हैं? 5 हैं. Because यहाँ पर हमारे जो फ्रैक्शन पार्ट है 4 आउट ऑफ 5 है, तो वो हाईलाइट किया है, वो शेडेड किया है. रेस्ट पार्ट डॉट करके आपको एक्सप्लेन किया गया है. फाइन. सो 4 आउट ऑफ 5. दैट्स वाई दीज आर टोटल 5. 1, 2, 3, 4, 5. बट 4 parts are shaded. Only 4 parts are shaded. 1, 2, 3, 4. Because 4 out of 5 she has. Now she has given 1 out of 5. 1 उसमें से निकाल दिया, उसने आउट कर दिया. 1 out of 5 उसने निकाल दिया.
उसने किसे दे दिया? आशु को। नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट्स रिमूव्स 1, जितने पहले 4 पार्ट्स कलर्ड थे 1 उसमें से बाहर निकल गया। नाउ रिमेनिंग कलर्ड पार्ट आर, आप लोग देख सकते हैं 1 रिमूव करने के बाद कितने पार्ट्स रिमेन रह गए? 1 2 3 पार्ट्स आर देयर। सो 4 out of 5 minus 1 out of 5 is equal to 3 out of 5, which can also be written as 4 out of 5 minus 1 out of 5 is equal to 4 minus 1 out of 5 is equal to 3 out of 5. So, we are doing subtraction of fraction. Subtraction can also be shown on a number line as under. We have a problem here, that is 5 out of 6 minus 2 out of 6 is equal to 5 minus 2 out of 6 is equal to 5 minus 2, 3 out of 6. So we'll represent these fractions in the number line, on the number line, like here is the number line. We'll start it from 0 and we have to divide the number line into 6 equal parts. What I explained earlier, that if we draw any number line, we just look into the denominator part. This is denominator, this is numerator. Okay, denominator part, it means we have to divide the number line into 6 equal parts. So here is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and that is 6. Now we have divided the number line into 6 equal parts. Now we'll mention 0 out of 6, 1 out of 6, 2 out of 6, 3 out of 6, 4 out of 6, 5 out of 6 and 6 out of 6. It means 1. हम इसे 1 भी denote कर सकते हैं. Fine everyone. Now what we have first fraction? This one, 5 out of 6. So 0 to 5 out of 6. 5 out of 6. Now we have to subtract 2 out of 6. इसमें से हमने कितने subtract करने हैं? 2 out of 6. It means अब हम लोग बैक काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे. अगर हम आगे को काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो वो तो ऐड हो जाएगा उसमें. 5 आउट ऑफ 6 में अगर हम आगे को काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो वो तो उसमें ऐड हो जाएंगे. सो व्हाट विल डू? विल जस्ट डू बैक काउंटिंग. हमको कितना बैक काउंटिंग करना है? 2 आउट ऑफ 6. नाउ वी सब्ट्रैक्ट 2. बैक काउंटिंग कीजिए. 5 आउट ऑफ 6 यहाँ पर है. 1 2 हमने बैक काउंटिंग कर लिया. यहाँ से हमारा 1 2 बैक काउंटिंग कितना हो गया? यहाँ पर हमने बैक काउंटिंग किया. ओके, ये हमने 5 आउट ऑफ 6 में से -2 आउट ऑफ 6 किया. सो हमारा कहाँ पर आया नंबर लाइन में आंसर? 3 आउट ऑफ 6. हियर इट इज़ 3 आउट ऑफ 6. ओके, नंबर लाइन में जब हम एडिशन करते हैं तो हम आगे को फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं एंड जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? सो इट मीन्स दैट difference of like fractions is equal to difference of numerator out of common denominator. ओके एवरीवन, जब हमें
लाइक फ्रैक्शन का डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर, जो हमारे न्यूमरेटर होते हैं उनको आपस में हम माइनस करते हैं, और कॉमन डिनोमिनेटर जो हमारा सेम डिनोमिनेटर होता है उसको हम लिखते हैं नीचे. ओके, नाउ here we have some more examples. You will solve them here. Okay? Now, here we have some more examples of subtraction of fractions. Fractions हमको subtraction करना है. Okay? Now, हम क्या करेंगे? 5 out of 6 minus 1 out of 6. Now, what we'll do? We'll just take difference of numerator out of common denominator. जो डिनोमिनेटर है हमारा सेम है तो उसमें से हम वन डिनोमिनेटर यहाँ पर लिखेंगे एंड न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे. सो 5 minus 1 is equal to 4 out of 6. Now students, here we have the answer. But if you reduce it into simplest form, इसका हम simplest form में अगर हम आंसर निकालेंगे, now you are thinking that what is simplest form? In our previous tutorial class, find the value of में भी एंड उससे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लोवेस्ट फॉर्म में जब हमने फ्रैक्शन सीखा था उसमें हमने जो भी हमारा फ्रैक्शन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म लोवेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना सीखा था. फाइन, सो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज 4 out of 6. नाउ कैन यू टेल मी दैट 4 out of 6, 4 and 6 किसी की टेबल में आता है, किसी 1 की टेबल में. सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से डिवाइड करना पड़ता है. ना 4 की टेबल में 4 आता है बट 6 नहीं आता, 6 की टेबल में 6 आता है बट 4 नहीं आता. बट वी हैव वन नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर एग्जैक्टली. ठीक है, तो दीज आर इवन नंबर्स एंड इवन नंबर्स डिवाइडेड बाय 2. 2 से डिवाइड होते हैं. सो 2 की टेबल में 4 भी आता है. कौन से नंबर पे? 2 2s are 4 and 2 3s are 6. Now what we have here? We have 2 out of 3. Now it is solved. ये हमारा सॉल्व हो गया है और हमारा आंसर भी हमें मिल गया. वाई? बिकॉज 2 out of 3 अब किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा. ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. वाई? बिकॉज 2 तो प्राइम नंबर है, हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी पढ़ा है. 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. ये दोनों केवल अपनी ही टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं. अपने से ही डिविजिबल होंगे, इधर 1 से डिविजिबल होंगे. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4 out of 6. अंडरस्टूड? जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, माइनस करके इसे हमने सॉल्व किया, उसके बाद अगर हमें पूछा गया है कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी सॉल्व करना है, देन वी विल डिवाइड बोथ द नंबर्स विथ 1 नंबर. ओके, हम दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं मिल जाती, जब तक वो किसी और अपनी ही टेबल में नहीं आते या किसी और से डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, तब तक हम उसे कैंसिल करते रहेंगे. ओके, नाउ हियर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, कॉमन. First of all, we write here common denominator and in the top we'll write the difference of numerator. So 8 minus 3. Now we'll get 8 minus 3 is 5 out of 14. Now reduce to this fractions in the simplest form. इसको आपको reduce करना है, इसको या तो फिर simplest form में आपको लिखना है. 5 और 14 किसी की टेबल में आता है एक साथ. 5 इज ऑड नंबर एंड 14 इज इवन नंबर. इवन नंबर तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं बट 5 नहीं होता. दिस इज ऑड नंबर. सो 5 की टेबल में आएगा एंड 14 की ही टेबल में आएगा. 14 2 की टेबल में भी आता है बट 5 नहीं आता 2 की टेबल में.
इट मीन्स दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ये हमारा यहीं पर आंसर आ जाएगा. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया ना? Now students, we have one more problem here. Look at the problem number 4. Mr. Khan's belt is 8 out of 10 meter long and his son's belt is 6 out of 10 meter long. Okay, Mr. Khan की बेल्ट कितनी है? 8 out of 10 and उनके बेटे की कितनी है? 6 out of 10 meter long. Whose belt is longer and by how much? Very easy. वो तो देखने से ही आपको पता चल रहा है because it is like fraction. आपको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. एज ए सॉल्यूशन हम यहाँ पर ही सॉल्व करेंगे इसे. हम लिखेंगे सॉल्यूशन. ओके, सो मिस्टर खान्स बेल्ट. मिस्टर खान्स बेल्ट is equal to 8 out of 10 meter long. And his son's belt? His son's belt is equal to 6 out of 10 meter is long. Now, whose belt is longer and by how much? किसकी बेल्ट ज़्यादा लंबी है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है. What we'll do? We'll just subtract 8 out of 10 minus 6 out of 10. ये आपको साफ दिख रहा है. Okay, now it is like fraction. These are like fractions. दोनों like fraction है. So what we'll do? Just difference of numerator का difference out of common denominator, because we have same denominator here, so we'll write common denominator. Okay, now we'll solve it here. 8 minus 6, 2 out of 10. Fine everyone? So our answer is 2 out of 10. किसकी बेल्ट ज़्यादा लंबी है? मिस्टर खान्स बेल्ट इज longer than his son. उसकी बेटे से बड़ी है. But we have to find out the answer in centimeters. What the question saying? Give answer in centimeters. We have to find out the answer in centimeters. So this is 2 out of 10 meter. Now students, as we know that 1 meter is equal to 100 centimeter. So, 2 out of 10 of 100 is equal to 2 out of 10 multiplied by 100. Now, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और जनरली 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं. तो 1 डिनोमिनेटर जब हमारे पास होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो हमें आगे को उससे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है 1 से. ओके, तो क्योंकि 1 से हमारा 2 भी कैंसिल हो सकता है और 10 भी कैंसिल हो सकता है. इट मीन्स 1 10s are 10. ये यहाँ पर सॉल्व हो चुका है. नाउ वी हैव लेफ्ट हियर 2. दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन एंड दिस इज 10. Now 10 multiplied by 2 is equal to 20 centimeter. Fine. So Mr. Khan's belt is, हम क्या लिखेंगे लास्ट में? 10. Mr. Khan's belt is 20 centimeter long than his son's belt. Okay, understood everyone? Like this you have to solve the subtraction exercise of subtractions of like fractions.
कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रैक्शंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, फ्रैक्शन सम्स सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, इधर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शंस बोथ। आपको एडिशन भी सॉल्व करने हैं एंड सब्ट्रैक्शंस भी सॉल्व करने हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट मैथ्स ट्यूटोरियल क्लास। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।